السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت کیسوں اور اموات کی تعداد چھپا رہی ہے۔ ریاست میں کورونا کی صورتحال سنگین، مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا ریاست کو اختیار۔ مرکزی منسٹر آف اسٹیٹ وزیر داخلہ کشن ریڈی۔ کارپوریشن انتخابات پر چیف منسٹر KCR کی نظر، ہوم کوارنٹائن رہ کر پارٹی قائدین سے فون پر رابطہ جاری۔ ہاسپٹل کے احاطے میں نوجوان نے ماں کی گود میں دم توڑ دیا، 3 گھنٹوں تک کسی نے مدد نہیں کی۔ نوجوان کی 2 مرتبہ ٹیسٹ رپورٹ نگیٹو برآمد۔ تلنگانہ میں مکمل لاک ڈاؤن کے معاملے میں حکومت وضاحت کرے، کورونا کے علاج کو آروگیہ شری اسکیم میں شامل کرے، انتخابات پر نظر ثانی کرے، محمد علی شبیر۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی 10,122 نئے کیسز درج، 52 افراد کی موت۔ شوہر نے بیوی کی نعش کو کندھے پر اٹھا کر شمشان گھاٹ پہنچایا، انسانیت کو شرمسار کرنے والا اور ایک واقعہ، مقامی عوام اور سرکاری مشنری نے کوئی مدد نہیں کی۔ مودی حکومت تحفظات کو ختم کرنے کوشاں، فیول قیمتوں میں اضافے پر سخت تنقید، ارابلی دیاکر راؤ کا خطاب۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کورونا کی سنگین صورتحال ہے، کیسز اور اموات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسے میں تلنگانہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے معاملے میں مکمل آزاد ہے، اس کو اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ کشن ریڈی نے ورنگل میونسپل انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز اور اموات میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے، مگر حکومت حقائق کو چھپا رہی ہے اور کم تعداد کو سرکاری بلیٹن کے ذریعے پیش کر رہی۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ حقیقی رپورٹ کو منظر عام پر لائے اور کیسز اور اموات کی تعداد کو گھٹا کر پیش کرنا انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نے کہا کہ بڑی جدوجہد اور قربانیاں دے کر علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل کیا گیا، مگر گزشتہ سال چیف منسٹر کا خاندان ریاست کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ایک ہی خاندان کے ہر فرد کو روزگار فراہم کیا گیا، مگر تلنگانہ تحریک میں زندگیاں قربان کرنے والے نوجوانوں اور طلبہ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ورنگل و کھمم میونسپل کارپوریشن پر توجہ مرکوز کی ہے۔ فارم ہاؤس میں ہوم کوارنٹائن میں رہنے والے چیف منسٹر متحدہ ورنگل اور کھمم وزراء، ارکان اسمبلی اور دوسرے قائدین سے فون پر رابطہ پیدا کر کے انتخابی مہم کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے۔ جن ڈویژنز پر پارٹی کا موقف کمزور ہے، وہاں مہم میں تیزی پیدا کرنے قائدین کو ہدایت دے رہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات تک ریاست میں کوئی بڑے انتخابات نہیں ہیں۔ یہ 2 کارپوریشنز کے انتخابات آئندہ اسمبلی انتخابات میں TRS کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گے، اس لیے چیف منسٹر آرام کے دوران انتخابی مہم میں مصروف قائدین سے فون پر بات کر رہے اور انہیں مشورے دے رہے۔ واضح ہے کہ 30 اپریل کو ورنگل کھمم کارپوریشن کے علاوہ مزید 5 میونسپلٹیز کے انتخابات ہو رہے، جس کے 3 مئی کو نتائج برآمد ہوں گے۔ کانگریس کے سینئر قائد، سابق قائد مقننہ کونسل محمد علی شبیر نے ریاست میں مئی کے پہلے ہفتے سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے بارے میں جو رپورٹس اور افواہیں تیزی سے گردش کر رہی، اس کی فوری وضاحت کرنے کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا۔ ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے سابق وزیر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں KCR حکومت پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ میڈیا کی رپورٹس اور افواہیں تیزی سے وائرل ہونے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن کو لے کر عوام میں فکر دیکھی جا رہی۔ ایک طرف لیبر دوبارہ نقل و مقام کر رہے تو دوسری طرف عوام ضروریات کی اشیاء ذخیرہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے۔ اس پر حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے۔ پہلے بھی چیف سیکرٹری اور وزیر صحت کے علاوہ دوسرے وزراء اور قائدین
की जानिब से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू नाफिज करने की तरदीद की गई। बाद में नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रियासत में कोरोना के केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा। अवाम में फैली बेचैनी को देखते हुए हुकूमत सरकारी और तौर पर लॉकडाउन के बारे में वजाहत करे। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो अवामी शोबे के इदारों को खानगी शोबे के हवाले करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत पकवान गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए फी लीटर तक पहुँच गई हैं, जबकि पकवान गैस सिलेंडर की कीमतें भी 1000 रुपए फी सिलेंडर तक पहुँच गई हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बीजेपी के इंतखाबी जलसों और रैलियों में पकवान गैस सिलेंडर्स के साथ एहतजाज करे। दयाकर राव ने तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन डी विनोद कुमार और गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर के साथ वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए टीआरएस के मुख्तलिफ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। अवाम से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के अवाम को 15 लाख रुपए हर बैंक खाते में जमा करवाने का वादा करते हुए धोखा दिया। कर्फ्यू के औकात के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पर मौजूद मरीजों को महकमे पुलिस की जानिब से हिरासत जाने की शिकायत मौसूल होने लगी है, जबकि पुराने शहर के कई इलाकों में रात देर गए सिगरेट, पान, गुटखा फरोख्त किया जा रहा, लेकिन महकमे पुलिस की जानिब से उन सरगर्मियों को बंद करवाने के डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और मेडिकल शॉप्स को बंद करवाया जाने लगा है, जबकि कर्फ्यू के औकात कार में उन्हें मुस्तस्ना करार दिया गया है। इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में मेडिकल पुलिस हिरासानी का सामना करना पड़ रहा। कर्फ्यू के औकात के दौरान फूड डिलीवरी की भी इजाजत है, लेकिन दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में होटल मालिकीन की जानिब से कर्फ्यू के औकात के साथ अपने कारोबार बंद कर दिए जा रहे और कहा जा रहा है कि कर्फ्यू के दौरान फराहम की जाने वाली ऑनलाइन खिदमात को डिलीवरी के लिए होटल खुला रखने की सूरत में जो अखराजात हो रहे हैं उनकी पाबजाई मुश्किल है, इसलिए वो अपने कारोबार को कर्फ्यू के साथ ही बंद करने लगे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट को 3 मई से 31 मई तक गरमाई तातीलात रहेंगी। तातीलात के दौरान दर्ज झैल जजेस मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब रहेंगे। तातीलात के पहले निस्फ में 4 मई को दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की 6 मई को और 11 मई को दाखिल होने वाली दरख्वास्तों की 13 मई को जस्टिस जी श्री देवी और जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की डिवीजन बेंच समाअत करेगी। इसी तरह 4 मई को पेश होने वाली दरख्वास्तों की 6 मई को और 11 मई को पेश होने वाली दरख्वास्तों की 13 मई को सिंगल रुकनी बेंच में जस्टिस टी विनोद कुमार समाअत करेंगे। दूसरे हाफ में 18 मई को पेश होने वाली दरख्वास्तों की 20 मई को और 25 मई को पेश होने वाली दरख्वास्तों की 27 मई को जस्टिस अभिनंद कुमार व जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच डिवीजन और उन्हीं तारीख में पेश होने वाली सिंगल रुकनी बेंच के मामलात की जस्टिस के लक्ष्मण समाअत करेंगे। तेलंगाना मीडिया एकेडमी ने रियासत में कोरोना वायरस से फौत होने वाले हर एक सहाफी के विरसा को 2 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर एकेडमी ने कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों के खानदान को फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने मुतवफी सहाफियों के खानदान से ख्वाहिश की है कि वो माली इमदाद हासिल करने के लिए 10 मई तक तेलंगाना मीडिया एकेडमी के दफ्तर वाक़े एसी गार्ड मासाब टैंक पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मुतवफी सहाफी का एक्रेडिटेशन कार्ड, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और DPRO की जानिब से तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करें। मजीद तफसीलात के लिए 23298672 पर राब्ता है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 10,122 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस की केसेस की तेलंगाना में कुल तादाद 4,11,905 हो गई। इसी तरह 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 52 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। इसके अलावा आदिलाबाद में 140 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। भद्रादरी कोत्तागुड़म में 174, JHMC में 1,440, जगतियाल में 204, जनगांव में 160, जयशंकर भोपालपल्ली में 101, जोगलांबा गदवाल में 78, कामारेड्डी में 279, करीमनगर में 369, खम्मम में 424,
कुमरम भीम आसिफाबाद में 77, महबूब नगर में 417, महबूबाबाद में 202, मंचरियाल में 195, मेदक में 229, मिर्चल मलकाजगिरी में 751, मुलगू में 79, नागर कर्नूल में 257, नलगुंडा में 469, नारायणपेट में 38, निर्मल में 129, निजामाबाद में 498, पेदापल्ली में 169, राजन्ना सिरसिला में 225, रंगारेड्डी में 621, संगारेड्डी में 262, सिद्दीपेट में 230, सूर्यापेट में 303, विकाराबाद में 281, वानापट्टी में 157, वरंगल रूरल में 233, वरंगल अर्बन में 653 और यदाद्री भोंगिर में 278 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में आइंदा 3 यौम के दौरान हल्की और तेज बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता यौम जारी करदा बुलेटिन में कहा कि रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों में भी बारिश का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि रियासत तेलंगाना में बारिश के इम्कानात में 80% तक का इजाफा हुआ है और कहा जा रहा है कि आइंदा 3 यौम के दौरान रियासत में हल्की और तेज बारिश के साथ साथ बाज मुकामात पर ज़ालाबारी के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों के मुताबिक रियासत तेलंगाना के बेशतर तमाम अजला में बारिश की पेश कयासी के साथ शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा शहर के नवाही और मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जाने लगे हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 यौम के दौरान रियासत तेलंगाना में मुसलसल तेज बारिश के अलावा फवार का भी इम्कान है और मतला आबर आलूद रहने के सबब दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। नाजरीन, इससे पहले चंचलगुड़ा जेल रोड को रेसिंग अड्डा बनाने की खबर सामने आई थी। उसी ताल्लुक से खुसूसी मीरचौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चंचलगुड़ा जेल रोड मलकपेट पर कुछ नौजवानों की रेसिंग वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कार और बाइक्स पर बच्चे स्टंट्स कर रहे थे और रेसिंग कर रहे थे, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इन नौजवानों की तलाश में मसरूफ हो गई थी। स्पेशल पुलिस और पूरी पुलिस महकमा स्पेशल ब्रांच इन नौजवान बच्चों की तलाश में है और गाड़ियों के जरिए वीडियो में देखी गई व्हीकल्स के जरिए बच्चों को पकड़ा जाएगा। मीरचौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि जो भी इस रेसिंग में शामिल थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। IPC और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन सब पर केसेस भी दर्ज किए जाएंगे। आगे की तफसीलात सुनते हैं मीरचौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जुबानी। Good morning, my Mirchok traffic inspector. पिछले हफ्ते कुछ नौजवान गाड़ियों और कारों पे स्टंट करते हुए और रेसिंग करते हुए चादरघाट, मलकपेट, चंचलगुड़ा से होते हुए वो लोग फिर वापस मलकपेट गए। ये कल पूरे न्यूज़पेपरों में कवर हुआ। उसके बाद हम पूरे
पुलिस महकमा और स्पेशल पुलिस, स्पेशल ब्रांच सब इंक्वायरी कर रहे हैं व्हीकलों की। जो व्हीकल स्टंट करे, जो व्हीकल ये रेसिंग में इन्वॉल्व हुए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इंडियन पेनल कोड और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मैं सभी पेरेंट्स से और नौजवानों से अपील करता हूं कि सुबह फजर के बाद जो भी लोग ये इस तरीके से स्टंट और रेसिंग की हरकतें कर रहे हैं वो ऐसे हरकतें ना करें और अपने और वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने बच्चों को समझाएं, ऐसे हरकतों से बाज लाएं, वरना उन पे पुलिस एक्शन लेगी और जब एफआईआर होगा तो उनको। रियासत तेलंगाना में तमाम अफराद को मुफ्त कोरोना वायरस का टीका फराहम किए जाने के ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने भी इस ज़िम्न में एक मीटिंग मुनक्किद की और बताया कि तमाम नौजवानों को मुफ्त टीका फराहम किया जाएगा। BRKR भवन में बायोटेक के CMD डॉक्टर कृष्णा इल्ला के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जय रंजन और भारत बायोटेक के डायरेक्टर डॉक्टर साई प्रसाद भी मौजूद थे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत के पेश नजर मुख्तलिफ रियासतों में वाक़े हज हाउस को आर्जी कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल की रियासती हुकूमतों को इजाजत देने का फैसला किया गया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की हिदायत पर रियासती हज कमेटियों से कहा गया है कि वो अपनी मुतल्लिका रियासतों में वाक़े हज हाउस को आर्जी कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने दें और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लोगों की सेहत व सलामती के लिए रियासती हुकूमतों व इंतजामिया का भरपूर ताउन करें। गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटक, बैंगलोर, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, तुर्कमान गेट, तेलंगाना, हैदराबाद, मगरबी बंगाल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, भोपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, महाराष्ट्र, नागपुर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तमिलनाडु, चेन्नई, राजस्थान, जयपुर, बिहार, पटना, झारखंड, रांची, त्रिपुरा, अगरतला के हज हाउस को कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि रज़ाकाराना तौर पर मुल्क की बाज रियासतों की मसाजिद को भी कोरोना केयर सेंटर में तब्दील क्या किया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि तरक्की ही तेलंगाना राष्ट्र समिति का वाहिद एजेंडा है और सारी रियासत और सिद्दीपेट म्यूनिसिपालिटी में इसी एजेंडे के तहत काम किया जा रहा। उन्होंने सिद्दीपेट में TRS मजालिस मकामी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि सिद्दीपेट म्यूनिसिपालिटी में TRS को एक वोट देने का मतलब चीफ मिनिस्टर और नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हक में वोट देने के मुतरादिफ होगा। रियासती वजीर ने कहा है कि रियासती इंतजामिया ने अपनी जद्दोजहद से बता दिया कि तरक्याती काम किस तरह
आगे बढ़ाए जा सकते हैं। सिद्दीपेट टाउन में भी गुज़िश्ता 7 सालों में कई तरक्याती काम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से 300 करोड़ रुपए के सरफेस से अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम शुरू किए गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार किया है। अदालत ने ये इंतबाह भी दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल आवारी को यकीनी नहीं बनाया जाता है तो अदालत 2 मई को वोटों की गिनती रोकने पर मजबूर होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट MR विजय भास्कर ने इस सिलसिले में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई थी कि वो सख्त हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने और वोटों की मुनसिफाना गिनती को यकीनी बनाने के लिए एक गाइडलाइन जारी करे। साबिक़ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कोरोना सूरत-ए-हाल पर हुकूमत को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी अवाम के मुफाद में नहीं है और मुल्क को बीजेपी निजाम का मोहरा नहीं बनने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेना मुल्क के अवाम का हक है और कोरोना वबा को रोकने के लिए तमाम शहरियों को ये वैक्सीन मुफ्त दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बहस बहुत हो चुकी, शहरियों को ये वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। हिंदुस्तान को बीजेपी निजाम का शिकार मत बनने दीजिए। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत केसों और अमवात की तादाद छुपा रही है। रियासत में कोरोना की सूरत-ए-हाल संगीन, मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का रियासत को इख्तियार, मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी। कॉरपोरेशन इंतखाबात पर चीफ मिनिस्टर KCR की नजर, होम क्वारंटाइन रहकर पार्टी कायदीन से फोन पर राब्ता जारी। हॉस्पिटल के अहाते में नौजवान ने मां की गोद में दम तोड़ दिया, 3 घंटों तक किसी ने मदद नहीं की। नौजवान की 2 मरतबा टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव बरामद। तेलंगाना में मुकम्मल लॉकडाउन के मामले में हुकूमत वजाहत करे, कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करे, इंतखाबात पर नजरसानी करे। मोहम्मद अली शब्बीर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 10,122 नए केसेस दर्ज, 52 अफराद की मौत। शौहर ने बीवी की नाश को कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाया, इंसानियत को शर्मसार करने वाला और एक वाकया। मुकामी अवाम और सरकारी मिशनरी ने कोई मदद नहीं की। मोदी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने कोशां, फ्यूल कीमतों में इजाफे पर सख्त तनकीद, इर्राबली दयाकर राव का खिताब। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।